मेरी एक मित्र हैं जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में स्लम में स्टडी करती हैं। एजुकेशन उन्होंने शुरू की थी। बिफोर कोविड पीपल यूज टू प्रे। प्रेयर इज अ पार्ट ऑफ। आफ्टर द कोविड व्हेन शी केम एंड दे सेड लेट्स प्रे, उन्होंने कहा हम तो यीशु की प्रे करेंगे। क्लियरली कहा जाता है लोगों को कि आप अपने नेम्स और सरनेम नहीं बदलेंगे। एक एग्जांपल जो आपको पंजाब का चन्नी एक सीएम था वो तो है। लेबनान की कैपिटल इट वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ वेस्ट एशिया 1970 तक। क्या हुआ एक डिकेड में? We in anthropology, we talk about nation, we talk about nation state, we talk about national integration. जब नेशन ही नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन की बात कहाँ से आएगी भाई? This video addresses the following questions that have been previously asked in Anthropology Paper 2 of UPSC Civil Services Examination. Friends, the video which we are going to make, actually this news is no news at all. I'm going to address to my fraternity of anthropology because when somebody asks me, some beginner, what is anthropology? उसको तो मैं समझा देता हूँ। But if an expert like most of you, if you ask me what anthropology is, मैंने लिखा था उसमें ओरिएंटल में मेरा एक आर्टिकल आया था द सेम क्वेश्चन कि अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरे से पूछे व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज, मेरा सिंपल सा आंसर रहेगा काउंटर क्वेश्चन, व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट। एंड आई वांट a discussion to start on this point. I won't call it debate. For me, is a very bad word. You are using aggression in a negative sense. I want all of you, the ones who matter in the group, they should respond. But before that, let us discuss what this news is. It was there in uh, today's Times of India. More deaths, fewer births. But it doesn't mean that deaths have overtaken birth, but comparatively much less. When the COVID-19 pandemic struck, everyone knew that the number of deaths would be higher than the normal, and it did happen. Hmm? What came as a surprise is how the proportion of deaths to births remained stubbornly high even in 2022, well after the peak of the pandemic. In nearly every state, barring MP and Rajasthan, two of the states that were a part of Bemaru group, but now only two. The death to birth ratio hasn't returned to the level seen in 2019. In fact, most it's even higher than in 2020, suggesting that this wasn't just a temporary COVID shock, but very likely a longer term demographic shift. Take Goa, for instance. Different things are there, and these are covered in the map. In 2022, the number of deaths was 87% of births, far above 70% levels recorded in 2019 in Goa, and higher than 2020 also. Tamil Nadu shows a similar trend, 74% in 2022, same as in 2020, but well above the pre-COVID. Kerala, all these one by one. Even UTs like Chandigarh and Andaman and Nicobar Islands, which saw sharp spike in 2021, have not returned to the earlier levels. Andaman and Nicobar Islands reported 69% with death to birth ratio in 2022 compared with 58 in 19. In many regions, especially southern and coastal India, the consistently high ratio point to a combination of aging population, lower birth rate, and possibly lingering after effects of COVID-related mortality or health system disruption. This is important. In many regions, especially southern and coastal India, the consistently high ratios point to a combination of aging population, lower birth rate, and possibly lingering after effect of COVID-related mortality or health system disruption. Meanwhile, states with younger population like Bihar, UP, Jharkhand continue to show much lower death to birth ratio, all under 30%. Will this trend of higher proportion of death continue? Data says that it will depend on the next 2 years, whatever observations are there. And then they have shown it graphically. You have death
as percent of birth, all India 31% in 2019. 2020, it is 34. That COVID that is there. And these shades also show. Here it is very high, dark shade. Not dark, but second one. Then in 2021, it is 42%, again COVID, and 2022 reduced. Even with the pandemic winding down, Goa, Kerala, and Tamil Nadu continue to show signs of decline in population growth. Decline in population growth, not decline in population. Deaths exceeded births in Goa with COVID at its peak in 2021. A steep drop was also seen in Kerala and Tamil Nadu, with even big states like Andhra Pradesh feeling the same. What can we make out of these statistics? Is it a report at all? आप चार जगह से आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए, उसको आप न्यूज बना दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्टैटिस्टिक्स मीन्स व्हाट। बचपन में जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती थी, उसी तरह से लायर, डैम लायर, स्टैटिस्टिक्स। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं। 2 साल और रिसर्च करोगे तो भैया 2 साल रुक जाते, फिर भी तुम्हारा यही होना था, रोना। महीने भर से तो हम सुन ही रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। आई ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन दैट, इवन दैट इज बोगस। क्योंकि आपको रूरल अर्बन डिवाइड नहीं पता लगता, और रूरल अर्बन के बाद भी टाउन्स हैं, सिटीज हैं, मेट्रोज हैं। कास्ट एक मेजर इशू है, वो पता नहीं लगता। और सबसे बड़ा इशू है रिलीजन। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, व्हेनेवर आई से रिलीजन, आई मीन अब्राहमिक रिलीजन। देयर वाज अ टाइम जब इकोनॉमिक ग्रोथ और हिंदू ग्रोथ रेट की बात हुआ करती थी 1960s में। आज हम किसकी बात करें? इट इज नॉट जस्ट सिंपली द नेचुरल ग्रोथ। एक चीज आपको एडवांस में बता देता हूँ, सेंसस की फिगर तो आएंगी 2 साल बाद। Hindus की population, you will be seeing a decline of about 1%, at the best 2%, and others will be sharing the positives। और फिर दुनिया भर के कमेंट करने लोग शुरू हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। कैसे? बिफोर कोविड क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन पंजाब वाज हार्डली 1.5%। आज सर्वेस बता रहे हैं कि इट हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 15%। मेरी एक मित्र हैं जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में स्लम में स्टडी करती हैं, एजुकेशन उन्होंने शुरू की थी। बिफोर कोविड पीपल यूज टू प्रे, प्रेयर इज अ पार्ट ऑफ। आफ्टर द कोविड व्हेन शी केम एंड दे सेड लेट्स प्रे, उन्होंने कहा हम तो यीशु की प्रे करेंगे। ये बनारस का हाल है। दिल्ली में स्लम्स में जहां जहां क्रिश्चियन रहते हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि संडे को चर्च के लोग जाते हैं उनको ब्रेड एंड बटर देने के लिए, तो सरकार 5 किलो क्यों दे रही है फ्री? मुझे समझ नहीं आता। एक सर हैं, वकील हैं, नाम का हमेशा भूल जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ही हैज गिवन द स्टैटिस्टिक्स कि करीब 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। बहुत सारी जगह हैं। बंगाल में खास तौर से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। झारखंड में बहुत सारे गांव और टाउन्स हैं जहाँ पे फ्राइडे छुट्टी डिक्लेयर की जाती है, संडे की नहीं। जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तानी चाइनीज बॉर्डर, पिछले करीब 15 साल में मोर देन 1 लाख मदरसास एंड मस्जिद हैव बीन क्रिएटेड। पॉपुलेशन है चाहे नहीं है। उत्तराखंड में जो हो रहा है डेमोग्राफिक कर्स के हिसाब से, क्या हो रहा है? 1 लाख से ज्यादा इलीगल मज़ारें पिछले 15-20 साल में बनाई गई हैं, और सरकार जो है उनमें से 20-30-40 हजार जो है तोड़ भी चुकी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सेंसस में 1% और 2% डिक्लाइन, एक्चुअली इट मे बी 10% और इवन मोर, बट दैट विल नॉट बी डिपिक्टेड इन द सेंसस। क्यों? क्योंकि मैंने खुद झारखंड में देखा, कन्वर्टेड जो होते हैं उनका रजिस्टर सेपरेट रखा जाता है। चर्च कहता है हमारी पॉपुलेशन कहाँ इंक्रीज हो रही है, इट इज स्टेगनेंट एट 1.6। जितने भी SC/ST लोग होते हैं उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर्ड होता है, जिसको एफिलिएटेड क्रिश्चियंस का रजिस्टर कहा है। एंड व्हेन काउंटिंग इज डन, ये वाला रजिस्टर नहीं दिखाया जाता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले एक डिकेड या उससे ज्यादा टाइम में जो भी कन्वर्शन हो रहे हैं, क्लियरली कहा जाता है लोगों को कि आप अपने नेम्स और सरनेम नहीं बदलेंगे।
एक एग्जांपल जो आपको, पंजाब का चन्नी एक सीएम था, वो तो है। एंड दिस ट्रेंड इज राइजिंग, आपको पता भी नहीं लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इफ वन लीव्स हिंदुइज्म, इट इज नॉट दैट वन हैज लेफ्ट हिंदुइज्म, इट इज दैट अनदर एनिमी ऑफ हिंदुइज्म हैज बीन क्रिएटेड। क्या हिस्ट्री पता है आपको क्रिश्चियनिटी की? क्या आपको हिस्ट्री पता है इस्लाम की? लेबनान की कैपिटल, इट वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ वेस्ट एशिया, 1970 तक। क्या हुआ एक डिकेड में? ईरान में सिर्फ 5,000 लोग आए थे अटैकर। अफगानिस्तान का मामला तो आपके सामने है भाई, 1949 का। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है? क्रूसेडर ने जो कुछ किया था 10th 11th 12th 13th सेंचुरीज में, मेरी किस्मत या मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने कोविड के दौरान सेक्रेट टेक्स्ट पढ़ लिए बहुत सारे। आप भी पढ़ लो, जेनेसिस पढ़ो, ड्यूट्रियम पढ़ो, ओल्ड टेस्टामेंट में व्हाट दे से। कुरान पढ़ो, ओनली वन सूरा, चैप्टर 9 सूरा तौबा, खाली सिर्फ उसमें आयत 9 पढ़ लो, 23 पढ़ लो, 28 पढ़ लो, 29 पढ़ लो, 123 ऑनवर्ड पढ़ लो, अपने आप पता लग जाता है। हिंदू भी कहाँ अपने टेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। इसीलिए तो वो केरला फाइल क्या होती है वो हो जाती है फिर। चैनल देखो मुस्लिम्स के, वो किस तरह से घर आते हैं कि आपके टेक्स्ट में तो ये लिखा हुआ है, और तुम्हारे पास ये जवाब नहीं होता कि भैया तुम्हारे टेक्स्ट में क्या लिखा है वो बताओ। हमारे टेक्स्ट कौन से हैं? देर आर नो हिंदू टेक्स्ट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। दोज आर द हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया। हमारे जो भी वेद हैं, हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, जितने भी अदर टेक्स्ट हैं, दे आर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया। इंडिया, क्योंकि तब तो कोई रिलीजन था ही नहीं यहाँ पे। एंड हाउ द यूज ऑफ हिंदू स्टार्टेड, उसके लिए भी जानना चाहिए। हाउ द हिंदू वर्ड वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। आप बहुत भक्त हो राजा राम मोहन राय की, उसकी कब्र है लंदन में, मेरी किताब में फोटो भी है उसकी। मैं बहुत सेक्युलर था कोविड से पहले। अब हालत ये है, द इशू, वी इन एंथ्रोपोलॉजी वी टॉक अबाउट नेशन, वी टॉक अबाउट नेशन स्टेट, वी टॉक अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन। जब नेशन ही नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन की बात कहाँ से आएगी भाई? मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस इशू। लोग कहते हैं क्रिटिसाइज मनु स्मृति को, किसी ने पढ़ी भी नहीं होती। हु वाज मनु? हाउ मेनी मनus वर देयर? एंड विच वन ऑफ देम रोट मनुस्मृति? किसी को इतना तक नहीं पता, बट घरे आएंगे कि देखो मनुस्मृति में ये लिखा है, मनुस्मृति चैप्टर 5 श्लोक 30 में ये लिखा है, ये वाला मीट खाओ, वो वाला मीट खाओ। यू नो, अदर देन वेदास, एवरीवेयर द रेस्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन पोल्यूटेड। हमारी जितनी भी स्मृति हैं उनमें पोल्यूशन किया गया है। मनुस्मृति ओरिजिनल हैड ओनली 680 श्लोकस, एंड नाउ आई थिंक इट इज 256, 2594 और 96। तो श्लोक 5:30 ये कहता है वो समझ में आता है, श्लोक 5:51 कहता है वो समझ नहीं आता। श्लोक 551 कहता है, चैप्टर 5 श्लोक 51, कि जो बंदा शिकार करता है, शिकार करके लाता है, sells it to the shopkeeper who purchases from the shopkeeper, the one who cooks at home, the one who serves and the one who eats, all are criminals। क्या मतलब है इसका? आप लोग भी एक बात कहें और तुरंत ही आप उससे उलट दूसरी बात कह दें, इज इट पॉसिबल? इस तरह से तोड़ मरोड़ की गई। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द नेशन। ये नहीं कि इसको इस तरह से बांट दिया, होल स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट कर दिया, स्टैटिस्टिक्स आ गई, चुपचाप बैठ गए। हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमी की खराब हालत में है, आपको खबर ही नहीं दी जाती। पॉलिटिक्स की खराब हालत में है, एनालिसिस कहीं भी नहीं दिया जाता, मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे भी नहीं बोलता।
एग्जिस्टेंस के मामले में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी से देर वाज ए टॉपिक इन द सिलेबस अप टू 2008, एंथ्रोपोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बाहर कर दिया गया। अगर वो होता तो हम लोग क्या डिस्कस नहीं कर रहे होते। व्हेन यू टॉक अबाउट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जो इश्यूज मैं बता रहा हूँ क्या वो उसका पार्ट नहीं है। एथनिसिटी पे अगेन देयर वाज वन फुल चैप्टर इन पेपर वन, हटा दिया गया। तो अगेन आई आस्क, will you please be kind enough to tell me what anthropology is not? और मेरी आज की बात का मुझे नहीं लगता, टेक इट पॉजिटिवली एंड रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। अगेन रिएक्ट इज ए बैड वर्ड। मैं चाहूंगा, और नहीं बोलना है तो यू कैन हैव अ वेबिनार, यू कैन हैव अ सेमिनार, और नहीं तो कम से कम अपने कल्चर की जो है बुक्स तो पढ़ लो भाई। गीता पढ़ लो खाली, ओनली 700 श्लोक आते हैं, और पहले 48 श्लोक इंट्रोडक्शन है, नहीं चाहिए। कितने बचे? 652। अगर 10 श्लोक भी रोज पढ़ते हो तो 2 महीने में हो गए। खाली सिर्फ सरकार अगर करेगी तब हम करेंगे। सेक्युलर सेक्युलर का मुद्दा आजकल बहुत उठ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। मेरे को ये बताइए कि जब इमरजेंसी में दिया गया था 42nd अमेंडमेंट में, तो 44th अमेंडमेंट में जब सब चीजें हटाई गई थी तब तो नहीं हटाया गया। तो सारी सरकारें जिम्मेदार हैं तब से अब तक। बीच में से कोई भी कभी भी उठ करके कोई शब्द जो है वो कर देता है, ये कर दो वो कर दो। आप तो क्या कर रहे थे भाई? इश्यूज को रेज करना और उनका सोल्यूशन देना। आई थिंक दैट शुड बी द जॉब ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और सबसे पहले नेशन फर्स्ट। चलिए शुरू कीजिए बात। थैंक यू।